So in today video we are going to do card company question of Copland kit. ठीक है. So the requirement is first requirement is calculate the cost of equity of card company using the dividend growth model. Okay, so dividend growth model use करके we need to find out the cost of equity. So let's read out the question first. Card company has in issue 8 million shares with an ex-dividend market value of 7.16 per share. Ex-dividend market value means after paying dividend market value of shares. So dividend of 62 cents per share of 20x3 had just been paid. Okay, and the pattern of recent dividend is as follow. Okay, so pattern of recent dividend का use क्या है I will tell you later on. फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर देते हैं. कार्ड कंपनी ऑल्सो इश्यू 8.5% बॉन्ड रिडीमेबल इन 5 years टाइम विद a total nominal value of 5 million and the market value of each 100 bond is 103.42. Redemption will be at nominal value. Card company is planning to invest a significant amount of money in a joint venture in a new business area. It means operating risk is different. I'm sorry, business risk is different. It has identify a proxy company with a similar business risk to the joint venture, and the proxy company has an equity beta of 1.038 and finance 75% by equity and 25% by debt on a market value basis. Current risk-free rate of return is 4% and the average equity risk premium is 5%. Card companies pay profit tax at the rate of 30% per year and has equity beta of 1.6. तो बेसिकली ये जो नीचे का पार्ट है इट्स फॉर द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट यूज करते हैं. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. ठीक है, इन केस क्वेश्चन हैज नॉट मेंशन्ड विच मॉडल टू यूज, लाइक वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग द टू मॉडल. द फर्स्ट वन इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड सेकेंड इज द कैपम, राइट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. But if question has not mentioned which model to go through, so I will suggest to use the CAPM because it is more accurate as compared to the dividend growth model. So but question had specified and like this is question हम लोग को CAPM से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए जो भी वैल्यू चाहिए ना, इट्स ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, बट क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सो वी विल गो थ्रू इट. So I hope you guys have been studied the theory part of what is the dividend growth model is formula. Okay, so मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ विच आई हैव ऑलरेडी रिटन. ओके, सो नाउ k इक्वल टू डी ओ 1 प्लस जी डिवाइड बाई पी ओ प्लस जी. तो अब आपका है ना ये डी ओ को डी ओ 1 प्लस जी जो न्यूमरेटर पार्ट है ना उसको d1 करके भी लिख सकते हैं. d1 मतलब है d0 इंटू 1 प्लस जी है. ठीक है, d1 मतलब डिविडेंड में ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करने के बाद, डिविडेंड में ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करने के बाद डिविडेंड को d1 बोलते हैं एंड d0 में सिंपल डिविडेंड विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एनी ग्रोथ. ठीक है, तो इसको मैं समझाने के लिए लिखा. नाउ आई शुड डिलीट इट. ओके, नाउ d0 means dividend which company has just paid, in our case is 0.62, right? And g means growth, and sometime in question it will give you the what is by what amount the dividend is growing. Okay, growth percentage already have been given in the question sometime, but in some case you need to calculate as well, like in our question. We can calculate the growth by two method. I will suggest to go through the book. Okay, and the one of them is the by using the pattern of recent dividend. जैसे हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है पैटर्न ऑफ रिसेंट डिविडेंड, इसको यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो आप ग्रोथ, या फिर अदर मेथड वो रिटेंशन वाला आप बुक पढ़े होगे तो आपको पता होगा ये चीज़. तो अब अगर पैटर्न ऑफ डिविडेंड दिया है तो हाउ शुड वी कैलकुलेट ग्रोथ बाय यूजिंग दैट. आप सिंपली the dividend which has been recently paid by company Volo, which in our case is 62 cent, and divided by the base year dividend means year 0 which is 55.1.
अब आप सोच रहे हो कि 0.62 क्यों नहीं लिया, बिकॉज दोनों ही सेंट में, ये भी सेंट में वो भी सेंट में, सो मैंने अब उसको डॉलर में दोनों को बदलने से अच्छा है कि मैं सेंट में डाल दूँ, 100 वैसे कट जाएगा. ओके, एंड नाउ डू द पावर. अब just don't blindly take the here power with the number of years. Okay, so just don't blindly take the 4 as a number of years. Okay, अब ये हो जाएगा 1 2 3. ठीक है, 1 2 3, so 1 divided by 3 and do the -1. आपको फॉर्मूला पता होगा आई होप, तो इसको परसेंटेज में बदल देते हैं डायरेक्टली. So 4% dividend. So PO means X dividend market value of shares, which is already given in the question and which is 17.16 in our case. अब सारा कुछ हो गया. Just apply the formula, put the all the data which you have gathered and just put simply it into the formula. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका DO. इसको इंटू करेंगे आप 1 plus G which is growth divide by PO एंड ब्रैकेट क्लोज पूरा करने के बाद तब G ऐड करना है. G को ही पहले ऐड मत करना, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा. So 13% is our cost of equity by using a dividend growth model. So next requirement of the question is discuss whether the dividend growth model or capital asset pricing model should be used to calculate the cost of equity. जैसे कि मैंने बोला, इन केस क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं किया हो, जस्ट गो थ्रू द कैपिटल मॉडल. अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब कब यूज करेंगे. In case where all the data have been given like growth, current market price of the shares, dividend paid, currently dividend paid, in that case you can use the dividend growth model. But dividend growth model assume करता है that whatever the return you are getting through the project right now, it will be unchanged in the future as well. But reality में वैसा नहीं होता है. In case the project have a different risk profile, in that case the return will not be the same. Okay, so in that case कैपम मॉडल शुड बी यूज जहाँ पे डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है. अब कैपम क्या करता है, जैसे प्रोजेक्ट का रिस्क जो होता है विच इज कॉल्ड टोटल रिस्क. टोटल रिस्क मीन्स सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक. अनसिस्टमैटिक जिसको हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंग. आई होप आप लोगों को पोर्टफोलियो थ्योरी पता होगा. जस्ट डोंट पुट ऑल द एग्स इन द वन बास्केट. ठीक है, ये पोर्टफोलियो थ्योरी का रूल्स. तो पोर्टफोलियो थ्योरी के थ्रू हम लोग अनसिस्टमैटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट वेयर इन केस सिस्टमैटिक को नहीं. अब उसको मिनिमाइज कर देता है कैपम मॉडल यूज करने के बाद, तो इसीलिए हम लोग कैपम मॉडल उस सिचुएशन में यूज करेंगे. तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी होगी. इट्स ओनली फॉर द 5 मार्क्स एंड बट कैपम मॉडल के लिए जो हम लोग को वेरिएबल चाहिए विच वी शुड यूज द डेटा to put in the formula in order to get the cost of equity, वो में भी हो सकता है very difficult to obtain. ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना होगा. So now next requirement is calculate a project specific cost of equity for the card company for the planned joint venture. अब आपका जो कैपम मॉडल है ना, इन केस आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो वेयर बिजनेस रिस्क इज डिफरेंट. ठीक है, जिसमें लाइक आप करेंटली ऑपरेट कर रहे हो उस बिजनेस का बिजनेस रिस्क एंड जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस बिजनेस का बिजनेस रिस्क जब डिफरेंट है, वहाँ पे हम लोग ना बैक जो कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. वहाँ पे हम लोग को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना होगा. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कैपम मॉडल. अब यहाँ पे अब सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए जिस बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका कोई प्रॉक्सी कंपनी होगा जिसका बिजनेस रिस्क उस प्रोजेक्ट से सेम होगा, है ना. सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉक्सी कंपनी. उसका हम लोग इक्विटी बीटा यूज करके हम लोग बिट्टा एसेट फाइंड करेंगे. बिट्टा उसको अनगेयर कहते हैं. अनगेयर क्यों करते हैं, उसकी कि हम लोग का बिजनेस रिस्क लाइक डिफरेंट है ना. फाइनेंशियल रिस्क तो उस कंपनी का थोड़ी होगा, अपना हम लोग डालेंगे ना उस प्रोजेक्ट में. सो वहाँ से हम लोग जो प्रॉक्सी कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क हटाने के लिए हम लोग वहाँ पे बिट्टा एसेट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एंड बिट्टा एसेट कैलकुलेट करने के बाद व्हाट वी डू इज वी जस्ट अगेन वी रीगियर्ड. हम लोग अपना लाइक ये इक्विटी एंड डेप्ट यूज करके हम लोग फिर बिट्टा इक्विटी कैलकुलेट करते हैं एंड बिट्टा इक्विटी को हम लोग कैपम यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं. अब मैंने बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया, सो नाउ प्रैक्टिकल करते हैं सो दैट यू गाइज हैव ए मोर क्लियर कट पिक्चर. ओके, सो नाउ पार्ट सी. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अनगियर्ड.
अनगेड में क्या करते हैं, प्रॉक्सी कंपनी उठाएंगे, प्रॉक्सी कंपनी, इस पर इसका मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, अनगेडिंग इक्विटी बिटा। हम लोग अनगेड क्यों करते हैं, बिट्टा एसेट फाइंड आउट करने के लिए, बिट्टा एसेट इक्वल टू बिट्टा इक्विटी इंटू वी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई वी प्लस वी डी, इसको टैक्स रिलीफ मिलेगा कंपनी को, 1 - t कर देंगे, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सारा जो वैल्यू लेंगे वी विल यूज फॉर द प्रॉक्सी कंपनी, ठीक है। अब बिट्टा इक्विटी प्रॉक्सी कंपनी का क्या है, विच इज ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन, मैंने बोला ये सेकेंड पार्ट दूसरा क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। सो प्रॉक्सी कंपनी इक्विटी बिट्टा इज 1.038, ओके, एंड वीई मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, जस्ट पुट परसेंटेज में डाल दो, यहाँ पे लिखा हुआ ऑन द वैल्यू ऑफ ऑन द मार्केट वैल्यू बेसिस 0.75। सो वी डी हमारा वो भी दिया है 0.25 एंड 1 - t वो हो जाएगा आपका 1 - t मतलब टैक्स इन आवर केस इज 0.30 आई थिंक, या इससे, सो 0.3 t आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करके बिट्टा एसेट फाइंड आउट कर लो, बिट्टा एसेट मतलब सिर्फ बिजनेस रिस्क को इंडिकेट करता है। सो जस्ट सिंपली यूज द फॉर्मूला, so 0.84 इज आवर बिट्टा एसेट, ठीक है। अब इस बिट्टा एसेट को यूज करके हम लोग रीगेयर करेंगे, ठीक है। अब रीगेयर किसके लिए करेंगे, अब तो हम लोग को अपना फाइनेंशियल रिस्क में डालना होगा, ये तो बिजनेस रिस्क हो गया। अब हमारा फाइनेंशियल रिस्क डाल के जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसका फाइनेंशियल रिस्क डाल के हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विटी बिट्टा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्विटी बिट्टा के लिए सेम फॉर्मूला है, जस्ट ये बिट्टा एसेट और ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो वी से, सेम ऊपर का ही फॉर्मूला है, ओके। मैंने बस इधर उधर कर दिया है, बिट्टा एसेट इंटू BE plus BD and 1 - t bracket close and divided by VE, ठीक है। सो नाउ अब फटाफट वैल्यू डालते हैं, ठीक है। VA हम लोग ने निकाला विच इज ऑलरेडी ओके, सो VE हम अब V यहाँ पे निकालना होगा, V हम लोग का मार्केट हम लोग का खुद का नहीं दिया हुआ है। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट यू हैव गिवन द नंबर ऑफ शेयर विच इज 8000, 30 कॉमन ले लो, ऊपर 30 लिख देती हूँ, ऊपर में यहाँ पे आई विल राइट इट डाउन $30 कॉमन, ठीक है। So 8,000 is our number of share, and what is the market value of those share? It's given in the question here 7.16, ठीक है। Now VD, अब डेप्थ का market value. So we do have a how many of bond? Okay, we have given total nominal value of bond. So 5,000, ठीक है। And बॉन्ड का नॉर्मल वैल्यू ऑलवेज 100 होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला है सो 100 ही लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है इच 100 बॉन्ड, सो 100 एंड इसका मार्केट वैल्यू इज 103.42 के बाद ये आ गया एंड 1 - t, तो ये ऊपर का ये हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला डाल के फटाफट बिट्टा इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। सो सिंपली टेक बिट्टा एसेट, multiply it by BE plus this into this, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई BE। तो ये हमारा आ गया बिट्टा इक्विटी। अब बिट्टा इक्विटी यूज कर हम लोग कैपम का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपम का फॉर्मूला क्या है आपका, KE इक्वल टू RF प्लस RP, और RP मतलब होता है RM माइनस RF, सॉरी बिट्टा इक्विटी इंटू RP मतलब प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम दिया है जैसे अभी दिया हुआ है, और कभी कभी नहीं भी देगा तो आपको उस केस में मार्केट वैल्यू दिया होगा, ओवरऑल मार्केट वैल्यू का रिटर्न, तो RM माइनस RF करके आप रिस्क प्रीमियम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो नाउ जस्ट फॉर्मूला डाल देते हैं हम लोग, RF कितना हमारा, वो RF में दिया हुआ है क्वेश्चन में 4% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बिट्टा हम लोगों ने कैलकुलेट किया इनटू 5% रिस्क प्रीमियम इक्विटी,
सो 8.5 या 8.4 से जो कह लो, ठीक है। ये हो गया पार्ट सी का। नाउ डी का, discuss whether changing the capital structure of the company can lead to the reduction in its cost of capital and hence to increase in the value of company। अब इसका ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने बुक में एक फॉर्मूला देखा होगा, मार्केट वैल्यू, एक सेकेंड, मार्केट वैल्यू इक्वल टू आपका फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइडेड बाय वैक देखा होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि कंपनी का जो लाइक मार्केट वैल्यू जो कंपनी होता है ना, वो डिपेंड करता है, वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो अगर डिस्काउंट करते हैं और वैक लेके, उस पर डिपेंड करता है। तो अब मार्केट वैल्यू अगर हम लोग वैल्यू ऑफ कंपनी इंक्रीज करना है, एमवी अगर इंक्रीज करना है, तो हम लोग को वैक को रिड्यूस करना होगा। तो वैक कैसे रिड्यूस होगा, तो डिफरेंट थ्योरी है हमारे बुक में, आप देखे ही होंगे। तो जैसे कि पहले हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी है, व्हाट डज द ट्रेडिशनल थ्योरी से, वो कहता है लाइक अगर एट द लो लेवल ऑफ गेयरिंग, मतलब अगर गेयरिंग हल्का इंक्रीज हो रही है, हमारा जो चीपर डेप्ट है इंक्रीज हो रही है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनका के तो इंक्रीज होता है, बट लाइक जो बेनिफिट होता है ना चीपर डेप्ट का, वो ज़्यादा होता है इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसके कारण वैक क्या होता है, फॉल होता है। बट अगर आपका डेप्ट इंक्रीज किया कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हमारा क्या होगा, लेवल ऑफ गेयरिंग बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो लेवल ऑफ गेयरिंग, अब शेयर होल्डर को लगेगा कि नहीं, अब ये ज़्यादा डेप्ट यूज कर रहा है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेगा, और तो प्रॉफिट कम बचेगा हमको देने के लिए एज ए डिविडेंड। तो वो लोग भी डिमांड करेंगे कि मुझे भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हाई रिस्क हाई रिटर्न, उनको रिस्क परसिव तो होगा ना, डिप बढ़ेगा तो इन दैट केस आवर जो के इंक्रीज होगा विच विल बी मोर एज कम्पेयर टू द डेप्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा वैक राइज होने स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर एक्सट्रीमली हाई हो गया, वेरी हाई लेवल ऑफ केयरिंग, अब जो डेप्ट होल्डर है उनको भी रिस्क फेस होगा कि अब उनका भी लाइक अब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लाइक डेप्ट ले लिया है, इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रहा है, अब हम लोग को भी मिलेगा कि नहीं, वो भी डिमांड करने लगेंगे। तो आपका के डी एंड के ई बहुत इंक्रीज होगा, जिसके कारण आपका क्या होगा, वैक फॉल होगा। ठीक है। सिमिलरली मोडी M&M नो टैक्स मॉडल और टैक्स मॉडल, ये सब चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि हमारा वैक को कैसे वो करना है, सो दैट कि हमारा वैल्यू ऑफ कंपनी इंक्रीज हो। तो एक बार आप किट का पीछे का आंसर पढ़ना, आपको लगेगा कि सिंपल एक्सप्लेन करना ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो अगर आप आंसर भी लिख रहे हो तो मुझे मेरा मेल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन टेक्स्ट मी देयर, ठीक है। दिखा सकते हो कि मैंने ये चीज़ लिखा है करेक्ट है कि नहीं। सो आई विल सजेस्ट कि हाँ ये कैसे करना है कह। सो ठीक है, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो डू लेट मी नो। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू डिल्ला कंपनी, ओके। सो बाय, स्टे ट्यून विथ मी फॉर मोर वीडियो, ओके।